السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لأہلہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ آج کے حلقہ کشف المحجوب میں سبق ہے ملائکہ پر انبیاء اور اولیاء کی فضیلت۔ فرشتے اونچی ہستی ہیں، لیکن کہا نہیں، انبیاء ان سے اونچے ہیں اور اولیاء کو اللہ نے فرشتوں پہ بھی فضیلت دی ہے۔ کہا کہ جمہور مشائخ اہل طریقت کے اتفاق سے انبیاء اعظام و اولیاء کرام جو کہ محفوظ ہوتے ہیں وہ فرشتوں سے افضل ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ نے فرشتوں کو ان کی خدمت کے لیے مقرر کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ فرشتے رتبے میں انبیاء سے زیادہ بلند اور پیدائش میں ان سے زیادہ لطیف اور حق تعالیٰ کے زیادہ فرما بردار، لیکن خدمت میں وہ انبیاء کے خادم ہیں، فرشتے بھی۔ اور اللہ پاک نے ان سب کو مامور کیا ہے، فرشتوں کو، کہ وہ انبیاء کی خدمت کریں، اولیاء صالحین کی خدمت کریں۔ اور کہا کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا تمام فرشتوں سے، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا، کہ میں آدم سے افضل ہوں، میں آدم سے افضل ہوں۔ میری عبادت اور میری معرفت دو چیزیں آدم سے زیادہ ہے، اس لیے اس نے سجدہ نہ کیا۔ بڑی خاص بات ہے۔ آج کی گفتگو جاگتے ہوئے سنیں گے، اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے۔ دو چیزوں میں اس نے دعویٰ کیا۔ پہلا دعویٰ کیا عبادت کا، دوسرا معرفت کا۔ اس لیے کہتے ہیں شیطان بہت بڑا عارف معرفت رکھتا تھا، عابد عبادت رکھتا تھا، عالم علم رکھتا تھا، عاشق نہیں تھا، عشق نہیں تھا۔ عشق مانتا ہے حکم کو بغیر دلیل کے، بغیر حکم کو مانتا ہے۔ اس رب نے کہا کہ میرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا، وہی رب ہے کہتے ہیں آج میرے آدم کو سجدہ کرو۔ اس وقت حکم اصل ہوتا ہے۔ ابا ہو گیا بوڑھا، بادشاہت کی ترتیب بنی، شہزادہ آیا حضرت کے پاس، دعا فرما دیجئے۔ فرمایا میں چارپائی پہ حضرت بیٹھے تھے، باقی چٹائیوں بیٹھے تھے، فرمایا میرے ساتھ آ کے بیٹھ جاؤ۔ کہنے لگا نہیں حضرت، ادب کا معاملہ ہے۔ حضرت نے پھر اصرار کیا، آ کے میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ حضرت نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، دعا کرتا ہوں۔ کچھ دیر گزری، کچھ دن گزرے، دوسرا بھائی آ گیا۔ حضرت نے حضرت کے حکم کو حکم سمجھا، حکم کو حکم سمجھا، حکم مان کے چلا، دعا دے دی، 52 سال حکومت کر دی اورنگزیب عالم کی۔ شیطان حکم کو حکم سمجھتا، اس نے کہا میں علم میں زیادہ ہوں، ایک معرفت میں زیادہ ہوں، راز و رموز کائنات کے نظام کو میں جانتا ہوں، میرا علم زیادہ ہے، میری معرفت زیادہ ہے،
मेरी इबादत ज्यादा है। जमीन का कोई एक जगह नहीं थी जहां उसने इबादत न की हो। उसको इल्म का तकब्बर मार गया, उसको मार्फत का गर्रा मार गया, उसको इबादत का होना मार गया। अगर वो आशिक होता, इश्क होता, तो वो सिर्फ एक बात कहता कि मेरे सामने हुक्म की हैसियत है। किसकी? बस हुक्म की हैसियत है। इस वक्त हुक्म अफजल है। उसी रब ने कहा था मेरे अलावा किसी को सजदा ना करना। आज वही रब कहता है कि इसको सजदा करो सारे। अबा वस्तकबर, वो अकड़ गया और इनकार किया। वकाना मिनल काफिरीन, इनकार करने वालों में शामिल हो गया। कुफ्र कहते हैं इनकार करना, कुफ्र कहते हैं बगैर तहकीक के नाम मानना। ये क्यों है? तुम्हारा रब कहां है? दिखाओ हम फिर मानेंगे। वही कहां है? फरिश्ते कहां हैं? दिखाओ हम फिर मानेंगे। इसको कुफ्र कहते हैं। कुफ्र अरबी जबान में इनकार को कहते हैं। आज के सबक में यह बात वाज़ेह है कि फरिश्तों में इनकार का खुद मादा नहीं है। चाहत का, लज्जत का, आराम का, सुकून का अल्लाह ने रखा ही नहीं है। अल्लाह ने रखा ही नहीं है। वो चीजें अल्लाह ने रखी नहीं है। ये चीज इंसान में रखी है। इंसान के अंदर सारी चीजें, अभी आपको नींद आ रही है, गल्बा है, रात 27 की जागना, इबादत करना, खिदमत वालों का खिदमत करना, अल्लाह ने रखा है कि पल में हो सो जाएं। यही मुजाहिदा फरिश्तों से ऊपर कर रहा है। फरिश्तों में तो है ये चीज, है ही नहीं। फरिश्तों में ये चीज नहीं है। यही मुजाहिदा, यही नफ्स का मुजाहिदा, ये नागवारियों पे अल्लाह की रजा की खातिर चलना, नागवारियों पे अल्लाह की रजा की खातिर चलना, ये इंसान को फरिश्तों से ऊंचा करता है। फिर यही होता है जो आप अल्लाह अल्लाह सीखने आते हैं, अल्लाह वाला इल्म हासिल करने आते हैं, ऐसे लोगों के पांव के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं, पांव के नीचे पर बिछाते हैं। इस मुजाहिदे पे, इस कुर्बानी पे, इस नागवारी की बर्दाश्त पे अल्लाह फिर ऊंचा बनाता चला जाता है। और अल्लाह पाक फरमाते हैं तो मेरा फरिश्ता है, लेकिन ये इंसान जिसके अंदर सारी जरूरतें और मजबूरियां मैंने रख दी हैं, फिर जब ये मेरी इताअत पे आता है, इसके बारे में एक लफ्ज सुना होगा कि फरिश्ता नुमा इंसान है। इसके अंदर सारी मजबूरियां, माजूरियां रख दी हैं, फिर भी मेरी मान के चले, फिर भी मुझे मान के चले। और मेरी इताअत में अपने आप को छोटा बना दे। वो कौन सा लश्कर था जो हुजूर ने भेजा, और कौन उसका अमीर था? उसामा बिन ज़ैद। और बड़ी बड़ी हस्तियां उसके लश्कर में उनके मामूर थे, वो लश्कर के अमीर थे। छोटी उम्र थी उनकी, उम्र छोटी थी। उनसे 40-40 साल उम्र में बड़े बुजुर्ग मौजूद थे, 50 साल 35 साल उम्र में बड़े बुजुर्ग मौजूद थे, जिन्होंने जिंदगियां आका के कदमों में गुजारी। पर मेरे हुजूर ने उन्हें लश्कर का अमीर बनाया। और ये आने वाली जिंदगी में एक सबक है, ख्याल करना, अगर लश्कर का अमीर, जमात का अमीर, तस्बीह खाने का अमीर और फुकरा की जमात का अमीर, रूहानियत की जमात का अमीर, तरीकत और सूफियत की जमात का अमीर, अगर किसी ऐसे को बना दिया जाए, तुम उसमें उम्र में बड़े हो, इल्म में बड़े हो,
मार्फत में बड़े हो, इबादत में बड़े हो, वहां इताअत करके चलना, इताअत करके चलना, इताअत करके चलना। 91 में मेरे हजरत ने मुझे खिलाफत दी, 97 तक मैं किसी को बैत नहीं करता था, जरूरत ही नहीं होती थी। मैं कौन, मेरी क्या हैसियत। बार बार हजरत ख्वाब में आके फरमाते, मैंने तुझे अमानत दी है और सिर्फ तुझे दी है, तुझे दी। मेरे हजरत ने तो गुमनाम जिंदगी गुजारी थी। मुझे तो इब्तदाई सालों में बेशुमार लोगों की तरफ से है, इसका कोई पीर नहीं, इसका कोई ना, ये किसी का खलीफा है, ऐसी कहानी है इसकी। 97 में जाके मैंने बैत की और आज भी हजरत के हाथ में बैत करता हूं, बड़ों के हाथ में बैत करता हूं। आप मेरी बैत के कलिमात सुनेंगे तो आपको मेरी गहराई में है। मैं एक कलिमात कहता हूं, बैत ली मैंने हजरत ख्वाजा सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले पे, ये अल्फाज कहता हूं। जिंदगी में सफर इश्क से तय होता है, अकल वाले हार जाते हैं। कितनी चीजें हैं जो अकल में समझ नहीं आती। ये बंदा रिजालुल गैब हो सकता है, ये अच्छा, ये बंदा बुजुर्ग है, ये बंदा आज मेरे काफिले का जिम्मेदार होगा, ये बंदा तस्बीहाने के निजाम का जिम्मेदार ये बंदा है। इल्म मेरा ज्यादा है, इबादत मेरी ज्यादा है, राज रमूज इसरार लाहूत मलाकूत जबरूत मार्फत मेरी ज्यादा है। या ये नहीं देखा जाता, या हुक्म को देखा जाता है। इश्क हमेशा हुक्म को देखा जाता है, देखता है। इश्क हमेशा हुक्म को देखता है, इश्क हमेशा हुक्म को देखता है। और जब बंदा इश्क की दुनिया पे चलता है, अल्लाह उसको मार्फत के समंदर देते हैं। और बाज़ औक़ात मार्फत का समंदर उसके पास होता है और वो किसी साहिब मनसब होता है, खुद उसे पता ही नहीं होता, और अल्लाह उसके जरिए से काम भी ले रहे होते हैं। हाँ, खुद उसे पता नहीं होता और अल्लाह उसके जरिए से काम ले रहे होते हैं। अल्लाह ने उसको साहिब मनसब बनाया होता है, जिसे रिजालुल गैब कहते हैं। इश्क के सफर में लोग लाख दलीलें दे, कहां फंस गया। मैं एक जगह था, सुनने का वाकया है। मैं कहीं गया, कुछ हजरात बहुत सारे बैठे थे, बीच में जितने बंदे थे ना, उनके चेहरे मैंने देखे परेशान थे। उनमें से ना एक बंदा था जो बदमाशी की दुनिया, दहशत की दुनिया में आगे था। रब ने उसका दिल बदला, दिल तो अल्लाह के कब्जे में। मैंने उससे पूछा तो गुस्से से एक बंदे के बारे में कहने लगा। वो बंदा मेरा शहरदार मोहल्लेदार था। कहने लगा, आपके जाने के बाद इसने सबको इकट्ठा किया है और सबको इकट्ठा करने के बाद कहा है, कहां फंस गए हो, निकलो यहां से। ये 2 नंबर आदमी है। ये कहते हैं मेरा एक पीर है, खलीफा है। ना इसका कोई पीर है, ना ये किसी का खलीफा है। और पीर अगर बनाना है, कोई 80 साल से आगे के बंदे बुजुर्ग को तलाश करो। 80 साल से नीचे तो बंदा पीर होता ही नहीं। और उसने दलीलें दी। मुझे कहने लगा, फिर मैंने औरों को बुलाया। मैंने किसने क्या क्या कहा? मैंने कहा मेरा हुक्म है, जो कहा है बताओ। फिर उन्होंने बताया हर वो घटिया बात जो मेरे बारे में थी उसने बयान की। उसने सच कहा होगा। वो जो उस दुनिया का बंदा था, वो कहने लगा मैं तो ये दुनिया छोड़ के आपकी वजह से यहां आया हूं। ये मुझे आपके बारे में कहते हैं आप 2 नंबर है। मैं 2 नंबर जिंदगी तो छोड़ी मैंने आपकी वजह से है।
मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। मैं कहा ठीक है, इसको ना छोड़, फिर मुझे छोड़ जा। नहीं 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 नहीं। मैंने कहा मेरी हमारी ये जिंदगी है ही नहीं, मार दो, मर जाओ, मुकाबला, सड़कें ब्लॉक कर दो, झंडे लेके, गत्ते लेके, प्ले कार्ड लेके सड़कों पे निकलो, ये हमारी जिंदगी नहीं है। ना हमें पहले दिन ये सबक दिया। बादशाहों को गालियां दो, हुक्मरानों को, तबसरे करो, तबसरे देखो, तबसरे सुनो, पार्टियों के आपस में मुकाबले देखो, ये तो हमारी जिंदगी नहीं। हालात हाज़िर हमारा मौजू नहीं है। ठीक है, तो अगर उसका मुकाबला उससे बदला लेता है तो उसी का हो जा, फिर मेरा नहीं। ये बात होगी कोई 30-35 साल पुरानी, अंदाजा 30 साल पुरानी। वो आज भी बंदा मेरा मुखालिफ है, वो जिसने सबको इंजेक्शन लगाया था, ताकत का टीका था और मोटी सुई का था, हड्डियों के अंदर जाता था ताकि हड्डियां भी मजबूत रहें। जब इंसान में इश्क होता है, फिर उसे जितने इंजेक्शन लगते रहे, हर ताकत के इंजेक्शन में उसका इश्क बढ़ जाता है। इसका नाम कैस था। कैस अरबी में अक्लमंद इंसान को कहते हैं। हजरत इमाम हसन के दौरे खिलाफत में वो गवर्नर बना रहे थे, इस इलाके का जिम्मेदार ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो कहने लगे आपने फला इलाके का किसको गवर्नर बनाया? कहा किसको? कहा लैला को बना देते। मजनून, गाला ही, पागल है, दीवाना है कि लैला को मैं गवर्नर बना दूं? मजनून है। उस दिन से इसका नाम मजनू पड़ गया। उसके अंदर एक इश्क था, एक इंतहा थी। कुत्ता आया, कुत्ते के पकड़ के पांव चूम रहा है। उन्हें क्या कर रहे हो? कहा लैला की गलियों से चल के आया, उसके पांव की मिट्टी तो लगी होगी। बदली आ रही थी, बदल आ रहा था चलता हुआ, उसको देख के अशार पढ़ने शुरू कर दिए। वाह वाह, तू कमाल इंसान है, तूने लैला का जलवा देखा होगा, उसके सर के ऊपर से, घर के ऊपर से आया होगा, वाह, उसकी तारीफ शुरू कर दी। एक इश्क था, चाहे इश्क मजाजी था, उसने लैला और मजनू की कहानी पूरी दुनिया को दी, हीर रांझे की कहानी पूरी दुनिया को दी, साहिबा और मिर्जा की कहानी दुनिया को दी। एक और भी है, बताओ कौन है? शीरी फरहाद, हीर रांझा, सस्सी पुन्नू, कहानियां हैं, एक कहानियां हैं। उसकी बुनियाद इश्क है और बगैर दलील के है, और उसको जितना उनको रोका गया उतना वो आगे बढ़े हैं। रूहानियत का सफर चल पड़े हैं, ख्याल करना। रूहानियत के सफर पे चल पड़े हैं, ख्याल कीजिएगा, ख्याल कीजिएगा। रोकने की आखिरी कोशिश की जाएगी इस सफर से, कभी मेरी जात को बुनियाद बना के, कभी अकीदे को बुनियाद बना के। तेरे पीर का मजहब क्या है? वो तो मुझे वहाबी लगता है, वो देवबंदी है। नहीं, वो तो बरेलवी शिया है, वो तो बद अकीदा है। मेरे पास 4-5 बंदे आ गए, आप देवबंदी हैं? लेकिन मैं तो पैबंदी हूं। वो क्या होता है? मैंने कहा मैं पैबंद लगाता हूं, पैबंद लगाता। कहने लगे आप नजदी है? मैं कहा नहीं, मैं तो वजदी हूं। वो क्या होता है? मैं कहा मुझे कमली वाले के नाम पे वजद आ जाता है। वो क्या होता है? अच्छा, फिर लगता है आप मुनाफिक हैं। मैं कहा हाँ, हो सकता हूं, मैं तौबा करता हूं, हो सकता हूं मुनाफिक, मैं तौबा करता हूं। बड़े बड़े सहाबा ने अपने बारे में कहा, हजरा हंजला मैं मुनाफिक हो गया। थे नहीं, मैं क्या हो गया मुझे? मैं तौबा करता हूं।
کبھی میری ذات کے حوالے سے، کبھی تسبیح خانے کے حوالے سے، کبھی کہیں گے یہ وظیفوں کی سند کہاں ہے، کہاں سے یہ لکھے ہوئے ہیں وظیفے، یہ عمل کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ ہاں جہاں لکھے ہیں آئیں تمہیں بتائیں، ہم نے اکابر پر اعتماد پورا پیج ہے جس میں ایک ایک وظیفے کا حوالہ ثبوت موجود ہے. اگر تیری ناواقفیت ہے تو ناواقفیت کا علاج کر. یعنی وہ ہمیں اگر جس بولی سے بولے، ہم اپنے ادب کے پہلو میں لفظ ناواقفیت کہہ رہے ہیں، ناواقفیت کہہ رہے ہیں. مجھے ایک بندہ کہنے لگا یہ جاہل آدمی ہے، میں کہ نہیں، ناواقف ہے، اسے پتہ نہیں ہے یہ وظیفہ، یہ تسبیح، یہ عمل کتنی معتبر کتابوں میں ثبوت کے ساتھ موجود ہے، اسے پتہ نہیں، اس لیے اعتراض کر رہا ہے. کہنے لگا حسد کی وجہ سے کر رہا ہے، علم ہے اس کو. میں نے کہا چلو ہم یہ کہہ دیں اس کو ناواقفیت. کبھی کس پہلو سے، کبھی کن راہوں سے، کبھی کن راستوں سے، کبھی کن دلیلوں کے ساتھ روحانیت کے سفر سے روکا جائے گا، روحانیت کے سفر سے ٹوکا جائے گا، روحانیت کے سفر سے جدا کیا جائے گا. مجھے یہ دیکھو، میرے پاس ایک چیز ہے، تعویذ ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ میں نے اس دن ایک بندے سے کہا، میں کہ تجھے پتا ہے یہ ٹرمپ ہے نا امریکہ کا صدر، اس سے پہلے بائیڈن تھا، اس سے پہلے اوباما تھا، وہ ایک تعویذ دیتا تھا. ایک دم کہنا اچھا. میں نے کہا اس نے تعویذ دیا، دوسرے نے دیا، ٹرمپ نے تو عام کر دیا، سخی آدمی ہے، ہر بندے کو تعویذ دیتا ہے زبردست قسم کا. کہتے ہیں، میں نے کہا یہ کیو آر کوڈ ہے، یہ کیو آر کوڈ ہوتا ہے، یوں کرو، ٹھا کر کے دنیا کھل جاتی ہے اس کے سامنے. اور کیو آر کوڈ کے تعویذوں کی لکیروں کی کسی کو سمجھ نہیں آتی، الٹی سیدھی ایسے لکیریں ہوتی ہیں، اور ہر کیو آر کوڈ مختلف ہوتا ہے. لہٰذا معلوم ہوا کہ کسی مقصد کے لیے کوئی کبھی تعویذ اور بھی ہو سکتے ہیں، کبھی تعویذ اور بھی ہو سکتے ہیں. انگریز جو تعویذ دے وہ تو کہتا ہے سبحان اللہ، اور جو اللہ کے ولی صدیوں سے تعویذ دے رہے کر یہ کہاں سے آئے؟ اس پہ تو بحثیں کر رہا ہے. اس بحث کرنے والے سے بھی ہم نے بحث نہیں کرنی، اس کا بھی اکرام ہے. یہ سفر عشق سے طے ہوتے ہیں، یہ سفر اعتماد سے طے ہو رہے ہیں، اور آپ کر رہے ہیں. آپ میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس سے کوئی ٹکرایا نہ ہو تسبیح خانے کے معاملے میں. کوئی بندہ ایسا نہیں جس سے ٹکرایا نہ ہو تسبیح خانے کے معاملے میں. یہاں ایک چوکیدار ہوتا تھا، کہنے لگے جب یہ حویلی سے یہاں آیا تھا اس کے ایک پاؤں میں جوتا تھا، ایک میں نہیں تھا، مجھے پتا ہے اس کا. یہ سامنے چوکیدار کھڑا ہے، وہ چھلیاں بیچتا ہے مچھوں والا. میرے بچوں سے کہنے لگا تیرا ابا تے میں اے چوک وچ کھلو کے، تیرا ابا دوائیاں دی ڈبیاں بیچدا سی، میں چھلیاں بیچدا سی، ڈبیاں دوا. کہنے لگے دوائی، میں گیا نا، میں نے کہا ایسے کہنے ہاں ابھی تک ڈبی بچی ہوئی ہے میرے پاس تیری دوائی کی، چوک پہ کھڑے ہو کے ڈبیاں میں کہا یہ 1000 روپے تیری سچائی پہ، زندہ باد. اس کو میں نے 1000 روپے دی. جرت کے ساتھ کہتا ہے میں سٹے چھلیاں بیچتا تھا اس چوک پہ کھڑے ہو کے، تو ریڑی اور ٹھیلا لگا کے ڈبیاں بیچتا تھا. زندگی ہے، اس نے بہترین اس نے دلیل دی ہے. میرا کٹنگ کے لیے نا حجام آج بھی ایک ہے، 25 سال ہو گئے ہیں. میرے ساتھ ایک صاحب مجھے لے کے جاتے تھے، یا ساتھ ہی ہے، مجھ سے کہنے لگا یہاں ایک صاحب ہے، وہ کہتے ہیں کہ حکیم طارق اور ہم اکٹھے پڑھتے تھے، اور اس کے بعد پھر آپ کے فراڈ کی کہانیاں سناتا ہے. پہلے ہمیشہ نسبتیں ہوتی ہیں، یہ میرا کزن ہے، میرا ماموں ہے، میرا کلاس فیلو ہے، میرا استاد ہے، میرا شاگرد ہے. میں نے کہا آج لے جا ہے کون؟ میں نے بڑی اس کی باتیں سنی. بال میرے یہاں لگے ہوئے کٹے ہوئے ہلکے ہلکے لگ جاتے ہیں. اس کے پاس اندر گلی میں گئے ہم دونوں، تو جی اس نے کہا جی، اس نے کہا جی آپ کو کچھ، وہ یہ پیر بھی تھے ہیں، اور تھے نہیں ہیں، اور ساتھ حکیم بھی ہیں. تو مجھ سے کہنے لگے، اس نے کہا جی دوائی لینی. میں نے کہا ہے، میں نے کہا میرا دل کا مسئلہ ہے.
दिल के मसाइल बहुत ज्यादा हैं, दिल का मरीज हूं, कुछ इसका इलाज करते। अच्छा, तो मैंने कहा बहुत इलाज कराया। मैंने कहा वहां मजंग चुंगी पे एक हकीम तारिक बैठा, मेरा नाम सुन के ऐसे कानों को हाथ लगाया, लकीरें कजी ऐसे। क्या हुआ? कह रहे छोड़ें। मैं क्या बताएं, मुझे सही रास्ता दिखाएं। मेरा दिल अल्लाह को, उसके हबीब की मोहब्बत उसमें है ही नहीं। मेरे दिल के अंदर इबादत का मजा ही नहीं, मेरे दिल में अल्लाह के ताल्लुक की रोशनी भी नहीं है। मैं तो दिल का मरीज हूं। उस दिन मेरे एक बंदा खड़ा था, यहां एसी की सर्विस कर रहा था, एसी के। मैंने कहा कितने एसी रह गए? कह रहे एक सर्विस रह गई। मैं कहा एक और भी है, इसकी सर्विस भी होनी है। तो लकीरें ऐसे कानों में ऐसे। मैं क्या हुआ? लगे वो मेरा क्लास फेलो है। अच्छा, इकट्ठे पढ़ते थे। उसके बाद जो हकीम तारिक के उसने फराड, धोखे और नौसरबाजियां शुरू की कि इसका बाप सड़कों पे कागज चुनता था और ये करता था, ये करता था। करते करते ओए होए, साथ एक बंदा बैठा था कि लगा मेरा मामू, हाँ गालिबन मामू तो उनकी बड़ी मोहब्बत करते हैं, तारीफ, उनका मुरीद है वो, कहते अबकरी वाले पीर साहब हैं, ये हैं। मैं कि मामू से बात करवाना। आप क्यों करेंगे? मैं कहा वैसे करवा तो सही। उसने मामू को फोन दिया कि मामू एक बंदा बैठा है, आपसे बात करना चाहता है। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। उसने मुर्शिद मुर्शिद। ओ ने कहा भाई ये क्या हो गया? मैंने कहा आया था यहां कुदरती दोस्तों के पास, तो आपका जिक्र खैर हुआ, तो मेरे हुक्म फरमाया मैं यहीं आ जाता। मैं नहीं, वैसे में बात कर रहा था। अच्छा, आप हकीम साहब हैं? सच पूछे, मेरी याददाश्त कमजोर, मैं वालिद को भूल जाता हूं। मैं मिंबर पे बैठ के मैं सच कह रहा हूं। मैंने कहा अब तक तूने मुझे जो गालियां बुरा भला कहा, मैंने तुझे अल्लाह के लिए माफ किया। इधर से मैं गया, यहां पहुंचा, पीछे उसको फोन आ गया कि उसने लोगों को कहा है कि बदमाश हकीम तारिक लेके मुझ पे हमला करने आया था। इस सफर में आपको, मैंने तो इस सफर में बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ देखा। मैं खड़ा था सड़क पे, खड़े खड़े एक हकीम साहब थे, हकीम साहब तो नहीं, अखबारी नुमाइंदे। तारिक, तुझे याद है मैंने तुझे हकीम बनाया था? 4 बंदे खड़े हैं, ना तेरा मेरा वास्ता, ना मैं तो जानू। तू भाग जाता था, निकल जाता था स्कूल से। खामोश उसको देख रहा हूं, क्या कहता? हाँ हाँ अब बड़ा बन गया है, ये कह के चला गया। वाह भाई वाह, मैं क्या मजा आ गया। भाग जाता था सड़क से, ना मैं जानू तेरा ना वास्ता, ना तू मेरी खाला, ना मैं तेरा मामू, कुछ भी नहीं। मेरे दोस्तों, ये जिंदगी का सफर अगर तय करना है, इश्क से तय होगा। हर तरफ से बातें, कहानियां आपको आपकी बात के बारे में सुननी पड़ेंगी, तस्बीह खाने के बारे में सुननी पड़ेंगी, कभी मेरी जात के बारे में सुननी पड़ेंगी, सुननी पड़ेंगी। और अगर उसका जवाब देने का फैसला किया, अपने मकसद से हट जाओगे। हमारा मकसद पूरी इंसानियत को खैर पहुंचाना है, और इंसानियत से मुराद हर मजहब, फिरका, हर रंग, हर नस्ल, हमारा मकसद यह है। बाकी करेगा अल्लाह। हमारे जज्बे और अज़्म तो हैं, मकसद से हट जाएंगे, मंजिल से हट जाएंगे। और अगर मकसद और मंजिल से हट गए तो राहें जुदा हो जाएंगी। इसलिए यह सफर सिर्फ इश्क से तय हो सकेगा, और आशिक ही तय करते हैं। और आपके अंदर इश्क है तो अपने कारोबार, अपनी नौकरियां, अपना काम, अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के फकीर के पास आते हैं, और रब आपकी झोलियां भर देता है। रब आपकी झोलियां भर देता है, रब झोलियां भर देता है। सफर इश्क से तय होगा। मैंने सारी उम्र कहानियां सुनी हैं, बातें सुनी, यानी ये जदीद तरीन कहानी तो अभी मेरे सामने, बंदा भी खड़ा है, मैं उसको जाते हुए सलाम करता हूं। ये तेरा बाप नहीं, पहले उसने किसी और को कहा। मैंने कहा बेटा जाके इन दोनों से पूछो इससे, तो उसने कहा हाँ तेरा बाप और हम दोनों
सामने चौक में खड़े होके, इसके पास डब्बियां होती थी, ये डब्बियां बेचता था सड़क पे खड़े होके, और मैं सिट्टे छलियां बेचता था। आज भी वही बेचता हूं। मैं खुद भी उसके सामने गया, हाँ बेचता था, तेरी डब्बियां बची अब भी मेरे पास पड़ी है। मैं कही 1000 रुपए तेरा इनाम है। अच्छा, शरबत बेचता है गर्मियों को वो। मैंने कहा ये जितने खड़े हैं ना सबको शरबत पिला। उसका बिल बन गया। मैं कहा ये बिल भी है, इस तेरी जरूरत पे शरबत भी पिला, पैसे भी ले। खुश हो गया। हर बर्क पुकारेगा तुझे प्यार से 100 बार, और दामन में उलझ कर तुझे रोकेंगे बहुत खार, और दामन को बचाता हुआ खारों से गुजर जा, मंजिल तेरी आगे है बहारों से गुजर जा। अबा वस्तकबरा, वो अड़ गया कौम के नाम पे, मसलत के नाम पे। मेरा मकाम ऊंचा है, मेरा इलाका ऊंचा है, मेरा नाम ऊंचा है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। वकाना अबा वस्तकबर वकाना मिनल, बस इनकार करने वालों में, काफरों में शामिल हो गया। सफर को जारी रखना है, और है मौत तक का, या मौत से पहले तक है? बोले, सोने जागने वाले सारे बता दें। मौत तक का सफर है। आफियत से मेरा अल्लाह करा दे, आफियत से अल्लाह गुजरवा दे, आफियत से अल्लाह करवा दे। ये मौत तक का सफर है, और इश्क से तय होगा। और इश्क अंधा होता है, इश्क बहरा होता है, इश्क गूंगा होता है। हाँ हाँ, बस किसी अल्लाह वाले की बात सुना दूं आखिरी, फिर बैठ के जिक्र करते हैं, सुन लेना। उसने कहा किसी फकीर से निस्बत से पहले अपनी आंखें भी खुली रख, अपने कान भी खुले रख। हर चीज देख ले, स्याह सफेद देख ले, गुनाह सवाब देख ले, और कान भी खुले रख। जो बातें सुननी है इधर उधर की उड़ने वाली हवाएं, ये सुन ले, जो कुछ भी है सुन ले। आंखें भी खुली रख, कान भी खुले रख। जब किसी फकीर से निस्बत हो जाए, फिर आंखें भी बंद कर दे, कान भी बंद कर दे। आंखों से देख, कहे मेरी आंखों का धोखा है, ये सच है। कानों से सुन, कहा मेरी कानों का धोखा है, ये सच है। फिर अल्लाह तुझे तरक्की की राहों पे, इज्जत की राहों पे, रिस्क सेहत की राहों पे, रूह रूहानियत की राहों पे, अता शफकत की राहों पे अल्लाह चलाता जाएगा, चलाता जाएगा। और इंशाअल्लाह कामयाबी तेरा मुकद्दर बन जाए। इंशाअल्लाह कामयाबी तेरा मुकद्दर बन जाएगा। क्या ख्याल है? अल्लाह, हमारे सजन को नींद आई, उसने पहले से ऐसे किया हुआ है, चल भी ऐसे कर देते हैं। अल्लाह 70 में, फिर लाख थी में, 1000 थी में, सोना सोना जवान आई थे बुढ़ा आई। हाँ हाँ, अल्लाह अल्लाह। ठीक है, इश्क होगा, और अकल वाले दलीलों वाले तुझे तेरी सच्ची राहों से हटाने की सारी कोशिश करेंगे। तो उनके लिए दुआ करेगा और मोहब्बत करेगा। एक वक्त आएगा वो भी तेरी सच्ची राहों पे चल पड़ेंगे इंशाअल्लाह। दो चीजें, दुआ करेगा और मोहब्बत करेगा इंशाअल्लाह। पढ़े, क्या पढ़ते हैं मुट्ठियां बंद करके कि अल्लाह पाक ये जिंदगी ऐसी उलझी हुई है, तेरी रहमत होगी तो खैर बन जाएगी, वरना मौला मेरी रूहानियत की जिंदगी जैसे मुट्ठियों में उंगलियां हैं ऐसे बंद है, मेरा रिस्क भी ऐसे बंद है, मेरी सेहत भी ऐसे बंद है, मेरा सफर भी ऐसे बंद है। तेरी रहमत होगी तो मेरा काम बन सकेगा, तेरा फजल होगा तो खैरें मिल सकेंगी। तो क्या पढ़ेंगे? अल्लाहुम्मा काफा या ऐन साद, अल्लाहुम्मा हामीम ऐन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या ऐन साद, अल्लाहुम्मा काफा या ऐन साद, अल्लाहुम्मा हामीम ऐन सिन काफ।
اللهم كافها يا عين صاد. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. 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 الله 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 الله. الله آمین. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک
نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم آمین آمین برحمتک یا ذمہ دار پنچے گلی میں آ جائے.